हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 11 सोशल साइंस का, यानी सोशल साइंस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी। यानी देखा जाए तो जैव विविधता काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ रहे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो यूपीएससी की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों पे जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है, चर्चा करने से पहले जो एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, biodiversity. Biodiversity is the most important chapter, but our first point here, biodiversity. There is a easy. The biodiversity is short form of biological diversity. There is a biodiversity is a short form of the biological diversity. In a simple term of biodiversity is the total number of genes, species, and ecosystem of region. It include genetics diversity and species diversity and ecosystem diversity. Plants and animals continue only a small component of biodiversity. Do you know that the invisible microorganism constitute a large component of biodiversity here? Here show the most important picture on your screen, there biodiversity. Biodiversity is the all of living organism here, a farm animals, manure, milk, egg, meat, shadow, local space, fruits, timber, medicine, herbs, vitamins, potent plants, and others. That's the most important here, biodiversity on your screen. First of all, I define here a genes, species, and ecosystem. What do you mean to genes here? The basis biological unit of heredity or genes of individual belonging to the same species are similar, and genes control the characteristics of particular species. That is called genes. And a species, a group of every similar having some common characteristics or qualities and capable of interbreeding. This is a species. An ecosystem, any segment of landscape that include a biotic mean livings and abiotic mean non-livings component is known as the ecosystem. The ecosystem here, a landscape then including a biotic abiotic component here means living and non-living things live there is called ecosystem. The next point here is status of biodiversity in India. That is important. Status of biodiversity in India. Biodiversity is increased as we have moved from poles to about the equator. India is localized between 8 and 4 northern and 37 to 6 northern latitudes and 68 and 7 east and 97 is 25 east longitude. That is important. And due to the position, India has such a rich biodiversity. Further, India has only 2.42% of the world as a land area, but its contribute to their world as biodiversity is approximately 8% of the total number of species, which is estimated to be 1.75 million as per global biodiversity
assessment of UNEP of 1995. That is the most important. And 6% of the world species are found in India. 6% of the world species are found in India, and 45,000 plant species comprising about the 12% of the world as of flora and fauna in India is forest. There is the most important. 12% of the world as flora and found in the India forest. Two of the 12 biodiversity hotspot in the world are in India. That is important. Two of the 12 biodiversity hotspot in the world are India, and they are the northern eastern region and western Ghat. That is important. The main point here, a biodiversity hotspot is a region with their high level of endemic species. And endemic species are those species that are found in the contained limited area. And the mega biodiversity here, a unique combination of different plants and animals species which is not available anywhere easily. This is important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है जैव विविधता। देखिए, जैव विविधता कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सारे जीव जंतु जो है इस पे आश्रित होते हैं, ठीक है, और इस पर जो है हर जीव जंतु अपना जो है क्रियाकलाप करते हैं। तो जैव विविधता काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो देखा जाए, अगर हम पहले पॉइंट के अंतर्गत बात करें, जैव विविधता ही है हमारा, तो जैव विविधता जैविक विविधताओं का एक संक्षिप्त रूप है और सरल शब्दों में जैव विविधता जिन प्रजातियों और एक क्षेत्र की पारिस्थितिक तंत्र की कुल संख्या होती है और इसमें आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता शामिल होता है। यानी 3 तरह की विविधताएं जो है यहाँ पर सम्मिलित होती है। पौधे और जानवरों ही जैव विविधता के छोटे घटक निर्माण करते हैं। देखा जाए तो जैव विविधता जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें पौधे जानवर अपना जीवन यापन करते हैं। और आपको ये बात साफ कर दूं कि इन जीव जंतुओं के कारण ही पर्यावरण का संतुलन जो है बना हुआ है। कहते हैं अगर आप इसका विनाश करते हो और इनकी जो है अगर मात्रा घटी तो जर्नल सी बात है, प्राकृतिक बहुत सी चीज़ें जो है उथल पुथल हो जाएगी। और इवन आज के समय में आपको देखने को भी मिलता है, जहाँ पर बरसात होनी चाहिए वहाँ गर्मी पड़ती है, जहाँ गर्मी होनी चाहिए वहाँ बरसात होती है, जहाँ ठंड होना चाहिए वहाँ गर्मी है, जहाँ गर्मी वहाँ ठंड है। ये सारी चीज़ें जो विभिन्नताएं आपको देखने को आज के समय में मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार हम मनुष्य ही है। क्योंकि देखा जाए तो कहते हैं जैव विविधता में वो सभी कुछ सम्मिलित है जो ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ को अगर आप नुकसान पहुंचाते हो तो इसका पर्यावरण पे जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और पर्यावरण पर जब विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो हमारे जीवन को भी काफ़ी इफेक्ट करेगा। क्या आप ये बात जानते हो कि जो अदृश्य सूक्ष्म जीव जैव विविधता के सबसे बड़े घटक का निर्माण करते हैं? आप समझ सकते हो कि जो सूक्ष्म जीव हमारे आँखों से नहीं दिखती है वो जैव विविधता का एक बहुत बड़ा घटक का निर्माण करती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए कौन कौन से जो है जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम एक पिक्चर देखते हैं। यहाँ पर आप भली भांति देख सकते हो कि यहाँ पर हर जीव जंतु को दर्शाया गया है जैव विविधता के अंतर्गत। यानी हर जीव जंतु जो है पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसमें इंसान को भी रखा गया है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इवन की माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, सूक्ष्म जीव को भी सम्मिलित किया गया है जो हमारे अपनी आँखों से दिखता नहीं है। अब समझिए कि ये सारे जीव जंतु मिल के, पेड़ पौधे मिल के जैव विविधताओं को जो है एक सुचारू रूप देता है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हुई तो जर्नल सी बात है हमारे पृथ्वी पे जो है तहलका मच जाएगा, चारों तरफ जो है पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। और आज के समय में ये देखने को भी मिलता है। आपने देखा होगा कई क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ जाती है, कई क्षेत्रों में अचानक तूफान आ जाती है। तो इन सब का कहीं ना कहीं कारण जो है इंसानी है, जिन्होंने पर्यावरण को जो है बहुत ही क्षति पहुंचाई है और इवन कि बहुत से जीव जंतु नष्ट भी हो गए हैं। कारण क्या है? हमारा आधुनिकीकरण। आपको पता ही है कि आज हम लोग जो जहाँ पर हम 2G से ज़िंदगी जला रहे थे, आज हम 5G तक पहुँच गए हैं। अब सालों में देखिए 6G भी आ जाएगा।
तो ये इतना तरक्की भी जो है हमारे लिए विनाश का कारण सिद्ध हो सकता है। शायद मैं एक बात आपको याद दिला दूं, हड़प्पा कल्चर भी पूरा सभ्य कल्चर था, सभ्यता कहा जाता है, तो उसका भी विनाश हो गया। क्या हमारा सभ्यता का विनाश नहीं हो सकता? सभ्यता हो जा सकता है, क्योंकि हम भी वही गलती कर रहे हैं जो पुराने समय में दूसरे सभ्यताओं ने किया था। कहते हैं हमें अपने आप को इतना भी आधुनिकता में आड़ में नहीं खेलना चाहिए कि हम पर्यावरण को ही भूल जाए। आपको शायद ये बात मालूम होगा कि पर्यावरण के रिगार्डिंग जो है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से प्रोग्राम बनाए गए हैं, लेकिन सार्थकता रूप में देखा जाए तो इसका कोई भी कहीं तक कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ नाम के जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाया गया है, लेकिन कहीं भी इसका कोई भी जो है चिन्ह नज़र नहीं आता है। तभी तो कहा जा सकता है कि आने वाला समय में पर्यावरण बहुत ही तबाही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे हमारे समक्ष है बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए जीन, प्रजातियाँ, परिस्थिति तंत्र, काफ़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन है और हर एक बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी भी रहता है। तो इसलिए आपको ये शब्दों को जो है लिख भी लेना चाहिए, नोट भी करना चाहिए, ठीक है, और आगे भी बढ़ना चाहिए। कहते हैं जीन आनुवंशिकता के बुनियादी जैविक इकाई हैं। जीन जो है अनुवांशिकता का अर्थ होता है जो हमें दूसरे से प्राप्त होती है। जैसे आपको भी माता पिता से बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुआ है, तो वो जीन है। हम भी माता पिता के एक जीन है। तो जीन जो है अनुवांशिकता यानी दूसरे के कॉपी का एक राइट होती है, उसे जैविक इकाई कहते हैं। किसी एक प्रजाति के जीन उसी प्रजाति जीन से सामान्य होते हैं। आपको पता है पेड़ जैसे दिखेंगे, डॉगी जो होगा डॉग की तरह दिखेंगे, इंसान की तरह दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने प्रजाति के जीन जैसे ही दिखते हैं और जिन विशेष प्रजाति विशेषताओं को नियंत्रित भी करते हैं। यानी जो जीन होते हैं जिन जीव जंतु के, उसके प्रजातियों को जो है ये नियंत्रित करती है और उसको आगे प्रफुल्लित भी करती है। तो ये जीन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके पश्चात है प्रजातियाँ। देखिए यह एक ऐसा समूह होता है जो कुछ सामान्य विशेषता या गुणों और अंतर प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। ये प्रजातियाँ कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि गाय के भी कई प्रजातियाँ बनाई गई है। ये समझाने के लिए आपने देखा होगा कि गाय के भी बहुत से हाइब्रिड बनाए गए हैं। इवन कि अगर आप कहते हैं कॉलीफ्लावर ले लो, यानी जो है गोभी ले लो, आप देखते हो गोभी कितने सारे प्रजातियां हैं। गांठ गोभी भी है, पत्ता गोभी भी है, फूल गोभी भी है, ब्रोकली भी है। तो बहुत से प्रजातियां हैं ये, यानी एक ही स्पीसीज के कई रूप में आ गए हैं, तो वो उसकी प्रजातियां कहलाएगी। आपको समझ में आ गया प्रजातियां क्या होती है? अब भूल नहीं सकते कि विशेष गुण वाले होते हैं, वो होते तो उसी चीज़ का पार्ट होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज़ क्षमता विकसित हो जाता है, वो उसके प्रजातियां कहलाती हैं। उसके पश्चात है पारिस्थितिक तंत्र। किसी क्षेत्र में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर क्रियाएँ पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। सिंपल सी बात, जो आपके आसपास जीव जंतु, ठीक है, रहते हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। यानी आपने देखा होगा, और पारिस्थितिक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको पता है कि नदी हो सकता है या कोई दो तालाब हो सकता है, जहाँ पर हर तरह के जीव जंतु बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। और ये भी आप कह सकते हो कि किसी क्षेत्र में सजीव निर्जीव घटकों के मध्य जो अंतर्क्रियाएँ स्थापित होती है उसे हम पारितंत्र कहते हैं। तो ये तीनों शब्द जो है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। उसके पश्चात है भारत में जैव विविधता की स्थिति। देखिए दोस्तों, भारत में जैव विविधता की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको पता है जिस तरह भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, इनके लिए जैव विविधता बनाए रखना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होगा, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उनको आवास की आवश्यकता होगी, फैक्ट्रियों लगाने की आवश्यकता होगी। तो जैव विविधताओं के साथ बहुत ही जो है विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलेगा और इवन देखने को भी मिलता है। आपने देखा होगा कई क्षेत्र में जो है वन अधिक मात्रा में थे, लेकिन उसको काट के वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ों को जो है इंसानों के लिए बना दिया गया है और पेड़ पौधों को तो ऐसे काट दिया गया है जैसे कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था और इवन कोई सोचा भी नहीं इस बात का कि इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं आज हम ये सोचते हैं कि हम इतना क्षेत्र को काट दिया तो पर्यावरण को कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर आगे हम यही सोचेंगे इतना क्षेत्र को काट देंगे तो पर्यावरण क्या असर पड़ेगा, और धीरे धीरे हम पूरे ही क्षेत्रों को, पर्यावरण को जो है बिल्कुल ही पेड़ पौधे से नग्न कर देंगे। तो ये सही नहीं है। कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके ही विनाश का एक रास्ता तय होता है, ठीक है। तो ऐसे मत सोचिए कि हमने थोड़ा काट दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
फर्क पड़ा। और आप थोड़ा काट रहे हो, वो थोड़ा काट रहे हैं, सोचिए पर्यावरण कहाँ तक पहुँचेगा। पहले के समय में अगर गांव के क्षेत्रों में देखा करते थे तो बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए करते थे, लेकिन आज के समय में चले के जाके देख लीजिए कोई भी क्षेत्र में सबको सब जो है ज़मीन बना दिया गया है या घर बना लिया गया है। तो सोचिए कितना पर्यावरण जो है अपने आप में चेंज हो चुका है, और इसका प्रकोप हमें स्वयं ही झेलना पड़ेगा। और भारत में तो देखने को मिला ही मिला है, लेकिन ये ना सोचिए कि भारत में ऐसा हालात पहले से था। कहते हैं जब हम ध्रुव से और भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में वृद्धि काफ़ी होती है। भारत में 18 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 जो है पूर्व और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसकी अद्भुत स्थिति के कारण भारत में समृद्ध जैव विविधताएँ पाई जाती है, क्योंकि भारत में जैव विविधता हर एक कंट्री से बहुत अधिक है। इधर भी भारत का क्षेत्र विश्व की कुल भूमि का क्षेत्र केवल 2.4% ही है। आप समझ सकते हो कि 100% में हमारे पास सिर्फ 2.4% ही भूभाग है, बाकी सभी देशों के पास अधिक है। हमारे पास बहुत ही कम एरिया है, लेकिन विश्व जैव विविधता प्रजातियों की कुल संख्या लगभग 8% है, जो सभी देशों से अधिक है। विश्व में विविधता प्रजातियों की संख्या जो है 17.5 करोड़, जो यूनेस्को 1995 के विश्व जैव विविधता का आकलन के अनुसार है। यानी 1995 में जो आकलन की गई थी 17 दशमलव कुछ समथिंग जो है नोट डाउन की गई थी। अब देखा जाए विश्व कुल प्रजातियों का 6% भारत में पाए जाते हैं, यानी विश्व कुल प्रजातियों का 6% हमारे भारत में मिलते हैं। और देखा जाए तो और भी इंटरेस्टिंग बात ये रहता है कि 45,000 पौधे विश्व की वनस्पति का लगभग 18% शामिल प्रजातियां भारतीय जंगल में पाए जाते हैं। 85,000 पौधे, और देखा जाए तो पूरे विश्व के 12% हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहा है। भारत में विश्व के 12% जैव विविधता आकर्षण केंद्रों में 2 भारत में है, एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है और एक पश्चिमी घाट में है। यानी भारत में विश्व के जो 12 जैव विविधता क्षेत्र हैं वो या तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है या पश्चिमी घाट में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। अगर बात हम करेंगे पॉइंटों की तो कहते हैं जैव विविधता उत्तर सतह के देशांतर प्रजातियों का एक आकर्षक क्षेत्र है, और ये वे प्रजातियां हैं जो एक निश्चित सीमित क्षेत्र में पाई जाती है। यानी इनका एक सीमित क्षेत्र होता है। देखिए हर जीव जंतु का अपना एक क्षेत्र बनाए गए हैं, तो उन्हीं क्षेत्रों में वो काफ़ी निवास करते हैं। हम इंसान भी उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर हर चीज़ को सुविधाएँ हों। तो जीव जंतु का भी कुछ हद तक रूल यही होता है। कहते हैं मेगा जैव विविधता अलग पौधे और जानवरों के विभिन्न प्रजातियों जो कहीं और उपलब्ध नहीं है, एक अद्भुत संयोजन है। यानी देखा जाए तो कहीं और इतनी प्रजातियां नहीं मिलेगी जितनी की प्रजातियां भारत में हैं। तो कहा जाए तो भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमारा दायित्व भी बनता है इनकी संरक्षण करने का। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं बता दूं कि हमारे देश में जितने प्रजातियां थी, बहुत से प्रजातियां जो है विलुप्त हो चुकी है, और ऐसे बहुत से प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पे आ रखी है। लेकिन देखा जाए तो सरकार ने भी प्रयत्न किया है, लेकिन वो प्रयत्न सिर्फ कागजी बातों में ही है, वास्तविकता में कहीं तक देखने को नहीं मिलता है। और देखने को मिलेगा भी कहाँ से? बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विचारकों का ये मत था कि 5G आएगा तो जीव जंतु पे बहुत काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने जो है 5G लाने की पूरी परमिशन दे दी। तो समझिए कि सरकार पर्यावरण की तरफ बिल्कुल ही रुख नहीं कर रखा है। उनको तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को खुश करने का मकसद है, क्योंकि उनको इलेक्शन में वही लोग जिताने में हेल्प करते हैं। हमारे पर्यावरण तो कभी कर ही नहीं सकते। तो सोचिए इसका प्रकोप किसको मिलेगा? जब बाढ़ आती है तो मंत्री लोग जो है वहाँ पर जाते नहीं है पैदल, वो जहाज़ों से निरीक्षण करने आते हैं आपके क्षेत्र में। तो इसका प्रकोप हम पे ही पड़ने वाला है। और मैं हैरानी के से बात ये देखा कि इस पे जो 5G लॉन्च की गई, कोई राजनीतिक नेता ने एक उंगली तक नहीं उठाया कि आप 5G क्यों लॉन्च कर रहे हो, क्योंकि इससे जीव जंतु पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इवन कि मनुष्यों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आने वाला समय में बहुत मनुष्य क्रोधित होगा, बहुत ही जो है उसको फर्टिलाइजेशन चीज़ों में, बहुत से चीज़ों में जो है बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार ने कभी ये बात को नहीं सोचा। आज तो हमें
मोबाइल ऑन किया और फटाक से चल गया, ऐसा सिस्टम चाहिए। लेकिन दोस्तों ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत विनाशकारी सिद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तिरपान सेंटर ये भी बात कहता है कि सरकार को इस पर जागृत होने की ज़रूरत है, पर्यावरण का संरक्षण करने की आवश्यकता है, नहीं तो कहीं हमारा संरक्षण करने वाला भी कोई न बचे। दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मोबाइल पे जो है तिरपान सेंटर को सेव कीजिए, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। देखिए दोस्तों, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो पाएगा और आप तिरपान सेंटर से जुड़े रहोगे। क्योंकि सरकार सब्सक्राइब नहीं करोगे तो शायद आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त ना हो समय समय पे और कई टॉपिक से अनभिज्ञ रह जाओगे। क्योंकि आपको पता है तिरपान सेंटर बहुत हेल्पफुल है, 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ इसमें है। और प्लेलिस्ट में सारे प्रावधान उपलब्ध हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो, समझ सकते हो। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, सिर्फ तिरपान सेंटर को अपने मोबाइल में सेव करना है। और सेव करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो रेड बटन आपको सब्सक्राइब का दिख रहा है उसको दबाइए और तिरपान सेंटर के साथ जुड़ जाइए।